So what is string? Right now we have an idea string is nothing but an array of characters, and we just learn how to perform a different operations on a string. We just learn that. So now the next thing is like right now we learn how to like count the vowels, how to count the length of the string, how to like copy the string into another string, how to merge two strings with the space and something like that. Now today's task is write a program to convert string into uppercase. What is uppercase? तो अगर मान लो मेरा input ऐसा कुछ है, मेरे पास दो चीजें हैं input and output. So consider my string, my input string is hello. So output will be like this. Okay, output will be like this. अगर मान लो मैंने input किया hello इस तरीके से, then still my output will be like this. Okay, मतलब पूरा small है, then output will be capital letter. कुछ small, कुछ capital letters है, then still output will be capital letter. और अगर पूरा capital, then still output is capital letter. This is my requirement. Okay, this is my requirement. Is this clear? So input कुछ भी हो, input कुछ भी, what is my requirement? मुझे output capital letter. That's my requirement. So that is actually known as write a program, convert the string into uppercase. So what we have to do, firstly we have to read a string. तो सबसे पहला काम काज तो हमारा string को read करना होगा. And guys, just note down one thing कि आप जब भी work करते हो कंप्यूटर में, कंप्यूटर एक ही लैंग्वेज समझता है, and that is actually known as binary. Computer can understand only a single language, that is binary. Binary in the sense it understands only one thing, that is 0101 type of thing. Okay, 0101 type of thing. And now you have a decimal number. So decimal to binary you can convert. Okay, decimal in the sense whatever the numbers are there, numbers to numbers we can convert. Decimal to binary, decimal to octal, decimal to hexadecimal, numbers to numbers we can convert. But now अगर आप जिस string की बात करते हो, जैसे मैं आर्यन ऐसा कुछ लिख दूँ, so these are the alphabets. अगर मैं string की बात करूँ तो string के अंदर alphabet store होगा. Okay, so these are the alphabets. Alphabets को मेरा कंप्यूटर बाइनरी में स्टोर नहीं कर पाता, because उसको आदत क्या है, तो अगर कोई नंबर है then I can convert that one in binary, but here we have not a number. यहाँ मेरे पास नंबर नहीं है, यहाँ मेरे पास अल्फाबेट है. Then I cannot convert alphabets into binary. I cannot convert alphabets into binary. So what computer will do? Computer like what computer did actually. So it just generated ASCII code. ASCII code in the sense American Standard Code for Information Interchange. ASCII code means American, let I just highlight this, American Standard Code for Information Interchange. That is the full form of ASCII code. What ASCII code is actually. So ASCII code मतलब वो सिर्फ एक कोड है, मतलब अगर आप कैपिटल लिखोगे कंप्यूटर से ओ दैट्स 65, आपने कैपिटल बी लिखा कंप्यूटर से दैट इज 66, अगर आपने कंप्यूटर पे कैपिटल सी लिखा कंप्यूटर से 67, कैपिटल डी लिखने का 68, सॉरी दैट्स 68 एंड ऑनवर्ड्स इट वर्क. सो अगर आप जीरो पे पहुंचोगे, सॉरी जेड पे पहुंचोगे, दैट इज नथिंग 69. इज इट क्लियर? सो व्हाट इज ASCII कोड? ASCII कोड मतलब हर एक कैरेक्टर का कोई ना कोई कोड है, हर एक कैरेक्टर का कोई ना कोई कोड है. स्मॉल ए का कोड क्या होगा? यस एनीवन? यश, आर्यन, स्मिथ, चेरिस. व्हाट इज द कोड फॉर स्मॉल ए? 19-1 sir. Sorry, Smith? Yes. What is the code for small a? Yes, anyone? Smith, आपने कुछ बताया था? 19-1. Yes, 97. Let's be careful. ये कंटिन्यू नहीं है, बीच में कुछ स्पेशल करेक्टर. मैंने इसलिए पूछा. It's not in a sequence. हाँ, B का कोड 90 है, छोटू सी का कोड 90, छोटू डी का कोड 100 है. ओके, मानो छोटू Z का कोड क्या होगा? 22. ठीक है ना, इसमें 26 कैरेक्टर्स होते हैं, तो 97 पे पहला कैरेक्टर है, 25 कैरेक्टर्स ऐड कर दो, यू विल हैव एक्चुअली 120. बट आई हैव नॉट एन ट्रस्ट ऑन दिस कंप्यूटर. मतलब ट्रस्ट मतलब मुझे फैकल्टी पे ट्रस्ट है. एक्चुअली मैंने बुक में से रीड किया, मुझे बुक पे भरोसा नहीं है. आई वांट टू नो आई कंप्यूटर सीरियसली ऐसा कुछ ASCII कोड नाम की कोई चीज है? आर यू जोकिंग और आर यू सीरियस? सो लेट मी जस्ट ओपन ऑन सी लैंग्वेज और सी लैंग्वेज को पूछते हैं, भाई डू यू हैव ASCII कोड और नॉट? Okay, C language को पूछते हैं, do you have an ASCII code? So let me open this Turbo C. So what is my requirement? मुझे एक string चाहिए, but before the string मैं ऐसा कर देता हूँ, सर let me consider मेरा string पहले से मैं बना देता हूँ, that is actually character
ए ऑफ 10 और उसके अंदर डेटा रख देते ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसा कुछ थोड़े से कैरेक्टर रख देते, पूरी अल्फाबेट्स में टाइप नहीं करना चाहता। ओके, और मुझे इसका आस्की कोड चाहिए, बट बिफोर दैट आई वांट एन कैरेक्टर कोड। तो कैरेक्टर कोड कैसे मिलेगा, मतलब हर एक कैरेक्टर को इंडिविजुअल प्रिंट करना हो तो कैसे करेंगे गाइस? 0 से लेके कहां तक लूप चलेगी? जब तक ए ऑफ आई नल कैरेक्टर नहीं हो जाता, ए ऑफ आई नल कैरेक्टर नहीं हो जाता और मुझे एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करना हो तो क्या लिखूं? मैं तो सिंपल लिखूंगा %c/n a ऑफ आई। So that is ASCII 1 to 3. रन करेंगे तो आउटपुट आएगा A B C D E F G H in a separate line, in a different line, in a new line actually. My requirement is मुझे ये सब का ASCII कोड चाहिए. So what guys, ASCII कोड कौन से फॉर्मेट का था? Can you please tell me? A का ASCII कोड क्या था? अच्छा, छोटू है कि बड़ू है? So but obvious मेरा डेटा स्मॉल है, मेरे पास स्मॉल है, तो स्मॉल ए का ASCII कोड क्या था गाइस? Yes anyone? Smith sir, Aryan sir? 96. 97, but it's an integer value. इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करने के लिए क्या लिखा जाता है? %d। तो मैंने यहाँ लिखा %d a of i, but guys a of i तो कैरेक्टर है ना, चेक करो। ओह यस, इट्स वर्क्स फाइन, इट्स वर्क्स फाइन। इसने मुझे क्या रिटर्न करके दिया? इसने मुझे क्या रिटर्न करके दिया? इट जस्ट रिटर्न इंटीजर वैल्यू, it just return an integer value of all the character codes. Okay, it just return an integer value of all the character codes. What we did, we just tried to get the ASCII code. We just tried to get an ASCII code of a particular character. Okay, इसको बहुत सारी तरीके से चेक कर सकते हैं। What I did, मैंने सिंपल सा काम किया। I just create a string from A to H. F से H तक का मैंने एक स्ट्रिंग बनाया एंड मैंने उस स्ट्रिंग का डेटा प्रिंट करने की ट्राई की। मैंने पहले लिखा %c, then I just write on %d, और दोनों में प्रिंट तो मैंने a of i को किया। %c में हमने क्या प्रिंट किया है? a of i। सो i की वैल्यू पहले 0 होगी, इट जस्ट प्रिंट a। जब i का वैल्यू 1 होगा, इट विल प्रिंट b। जब i का वैल्यू 2 होगा, इट विल प्रिंट c। So in this character c, so in this %c, it just print all the characters actually, a to g, so a to h. What about this one? What about this %d? Sir, अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू प्रिंट करेगा, आपके अल्फाबेट की numerical value printer. That means it will print an ASCII code. So this is the ASCII code, guys. Okay, so but मुझे तो सबके साथ ASCII code चाहिए. I do not want to go with this approach. So what we will do, अब मुझे ऐसा चेक करना था कि सर ASCII code कहाँ से कहाँ तक होता है. So for that लेगा जैसे सर कैरेक्टर का मेमोरी एलोकेशन कहाँ से कहाँ तक होता है. तो गाइस कैरेक्टर का मेमोरी एलोकेशन होता है 1 byte. 1 byte means how many bits? 1 byte. So let me just open the calculator. ओके, 1 बाइट मतलब कितने बिट्स? यस एनीवन? 1 बाइट मतलब कितने बिट्स है गाइस? 8 bit. 8 बिट्स, एंड वी आर वर्किंग ऑन अ बाइनरी, सो 8 बिट्स मतलब 2/8। ओके, 8 बिट्स मतलब 2/8। सो लेट मी जस्ट ओपन दिस साइंटिफिक कैलकुलेटर। सो 2/8 मतलब गाइस होता है 256। ओके, बट अगर मैं 255 से स्टार्ट करूं, सॉरी 0 से स्टार्ट करूं, तो एंड होगा 255। ओके, एंड होगा 255 पे। सो व्हाट आई एम डूइंग, मुझे अपने कंप्यूटर में जितने ASCII कोड है सब प्रिंट करना है। सो मैं लूप चला रहा हूँ 0 से लेकर 25 तक, 225 तक, एंड आई एम जस्ट राइटिंग लाइक %d, %c, एंड हर एक ASCII कोड को प्रिंट करता हूँ, हर एक ASCII कोड को प्रिंट करता हूँ। बट ASCII कोड को प्रिंट करने के लिए %d चाहिए, मैंने साथ में क्या रख दिया? %c। %c मतलब उसका कैरेक्टर कोड भी प्रिंट होगा। %c मतलब उसका कैरेक्टर कोड भी प्रिंट होगा। लेट मी चेक। So here we have all this. So guys, these are the ASCII codes and the numerical values. अब ऊपर से लाइन नंबर 1 2 3 4 5 6 नंबर की लाइन पे देखिए, 6 नंबर की लाइन एंड थर्ड कॉलम 6 नंबर की लाइन 65 से चेक करने की बात कर रहा हूँ। देखो लिखा है A:65, A:65 और आगे बढ़ते हुए लास्ट में लिखा है Z:90, A:65। आर यू गेटिंग गाइस? सबको पता चला A:65 लाइन नंबर हॉरिजॉन्टली देखें तो रो नंबर एक्चुअली 6 7, रो नंबर 7 कॉलम नंबर 2, रो नंबर 7 कॉलम नंबर 2। अदरवाइज 65 को सर्च करें, इट्स एन ASCII कोड ऑफ A। उसी तरीके से थोड़ा और आगे बढ़िए, नीचे आइए 97 पे आइए, इट्स एन ASCII कोड ऑफ स्मॉल है, बीच में कुछ स्पेशल कैरेक्टर है। जैसे 90 पे देखिए,
Okay, Z colon 90. So then 90 is in ASCII code of Z. Then actually 91 is open square bracket, 92 is divide sign, 93 is closing square bracket, 94 is caret sign, 95 is underscore, 96 is single quotation and something like that. Okay, so these are the ASCII codes. अब थोड़ा last से second third line देखिए, last से second third line and first column. That's the value of theta 233. Then there is an actually pi symbol. Pi is actually 234. Okay, that there is an actually like delta sigma, that's actually 235. Infinite, that is actually 236. Phi, that is 237. उसके ऊपर देखिए once again there is a pi symbol और उसके पड़ोस में actually sigma का sign है, then theta का mu, eta, like delta, caret, plus or minus 240 पे देखिए plus or minus under root का sign है, greater than equals to something like that. So all the things are there. अब line number look, ASCII code देखिए 171, 172, 1.2, 1.4 something like that. थोड़ा ऊपर जाएंगे then there is also an ASCII code dollar, has, upper arrow key, music sign and something like that. इन शॉर्ट आपके कंप्यूटर में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सबको कंप्यूटर यूनिकली आइडेंटिफाई करता है कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, आप कुछ भी टाइप करो कंप्यूटर नहीं समझता, उस अल्फाबेट्स को कंप्यूटर समझता ही नहीं। कंप्यूटर क्या समझता है गाइस? इट अंडरस्टैंड ओनली वन थिंग, दैट इज ASCII कोड। तो ASCII कोड क्या है? What is ASCII code? It's nothing but a numerical representation. It is a numerical representation of your data, of your characters. Yes, any problem, guys? No, sir. Fine. So now, like my next requirement is, मतलब आप कैरेक्टर के लिए परसेंटेज C लिख सकते हो, it prints character code. Okay, इंटीजर के लिए भी परसेंटेज C लिख सकते हो, it prints a character code. कैरेक्टर के लिए परसेंटेज D लिखोगे, it prints ASCII code. इंटीजर के लिए परसेंटेज D ही लिखते थे आज तक. Okay, but right now we realize character and integer हम आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं. So that is something about the ASCII codes, guys. So now, if someone says, sir, मुझे ऐसा करना था, write a program, एक ऐसा प्रोग्राम बनाए, just read the character from a user से character read कर, print ASCII code. user से character read करिए, print ASCII code. So क्या करूँ? User से कितने characters चाहिए? How many characters you have to read from the user, guys? सिंपल सा चीज है, एक ही कैरेक्टर चाहिए सर। ओके, कैरेक्टर ले लेते हैं। मैं देखो स्ट्रिंग नहीं बना रहा, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स वगैरह कुछ भी यूज नहीं किया, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर चाहिए। यूजर सर को मैसेज भी दे देते हैं, ओ यूजर सर मुझे एक कैरेक्टर दीजिए, एंटर अ कैरेक्टर। अब इसको स्कैन कैसे करें विक्रम सर? कैरेक्टर के लिए क्या लिखा जाता है? परसेंटेज C एंड कहाँ पे स्टोर करना है? ए के अंदर। कैरेक्टर लिया, ए में स्टोर किया, प्रिंट क्या करना है? सर ASCII कोड। तो ASCII कोड के लिए क्या लिखेंगे? परसेंटेज D कोमा ए। इज इट ओके? परसेंटेज D कोमा ए। मतलब अगर कैरेक्टर का ASCII कोड चाहिए, आंख बंद करके परसेंटेज D लिख दीजिए। तो मैं तो इनपुट करूंगा Z, छोटू Z 122 आना चाहिए। फाइन, इट्स वर्किंग। मैंने सर इनपुट कर दिया, मैंने इनपुट किया, लेट आई जस्ट इनपुट अंडरस्कोर, इट्स जस्ट 95। ओके, मैंने इनपुट किया स्पेस, इट्स जस्ट 32। ओके, मतलब स्पेस का भी ASCII कोड। मैंने जस्ट एंटर किया एंटर, इट्स जस्ट 10। एंटर का भी ASCII कोड है। ओके, हम लोग कुछ भी इनपुट करें, दैट्स एक्चुअली डाउन एरो। मैंने डाउन एरो की प्रेस किया, दैट्स 0। ओके, सो गाइस आप कुछ भी इनपुट करो, हर एक चीज का कुछ ना कुछ ASCII कोड है। तो मैं पहले से बोल रहा हूँ सर मैं 0 इनपुट करूंगा, मैं 0 इनपुट करूंगा। ओके सॉरी, मैं 0 इनपुट करूंगा। 0 मीन्स 48। मतलब अगर आप नंबर्स को भी कैरेक्टर में स्टोर करोगे, उसका भी ASCII कोड होता है गाइस। ओके, अगर मैं 1 लिखूं तो 49। इज इट ओके गाइस? इज इट फाइन? ठीक है, तो ये मेरा प्रोग्राम क्या था? राइट ए प्रोग्राम टू गेट कैरेक्टर फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले ASCII वैल्यू। ASCII का फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड for information interchange. Is it done, guys? Any problem? नो सर। ठीक है, अपना टारगेट ये थोड़ी था, सर तो मजाक हो गया। हमारा टारगेट था
कि सर यूजर से एक स्ट्रिंग लीजिए, यूजर से आप एक स्ट्रिंग लीजिए और उसको कन्वर्ट करिए अपर केस में। तो स्ट्रिंग लेना आपको आता है गाइस? मान लो हमने इनपुट में लिखा एबीसीडी, इनपुट इज एक्चुअली एबीसीडी, तो इसको कैपिटल में कन्वर्ट करना है। सो लाइक आई हैव नो आइडिया हाउ टू कन्वर्ट दैट वन इन कैपिटल, बट मुझे इतना पता था छोटू ए का ASCII कोड क्या है, 97, और मुझे आउटपुट किसमें चाहिए, तो स्मॉल ए की जगह कैपिटल में चाहिए। कैपिटल ए का ASCII कोड क्या है, तो 65। अब इन दोनों में डिफरेंस बताएंगे कितना है? यस एनीवन? आर्यन सर ये आपको पता होना चाहिए, दोनों के बीच का डिफरेंस 97 और 65 का डिफरेंस। यश, विक्रम? 32। 32, फाइन 32। ओके, मेरे पास दूसरा कोड था बी, उसका ASCII कोड है 98। मुझे कैपिटल बी चाहिए, कैपिटल बी का ASCII कोड होता है 66। इन दोनों का डिफरेंस 32। सेम है 32। 32। मेरे पास यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है मेरे पास, ठीक है, उसका ASCII कोड 99 है, तो मुझे डिफरेंस उसका भी चाहिए। बोलते जाइए सर क्या डिफरेंस होगा। सेम। तो गाइस इसमें मतलब कहने का मतलब ऐसा हुआ कि अगर मुझे स्मॉल अल्फाबेट को, मतलब ये छोटू को बड़ू में कन्वर्ट करना है, छोटू को बड़ू में कन्वर्ट करना है, तो जो भी उसका डेटा है उसमें से 32 सब्ट्रैक्ट करो, तो जैसे 97 से 32 सब्ट्रैक्ट करें तो 65 मिलेगा। 65 मतलब क्या, 65 मतलब कैपिटल है। उसी तरीके से अगर मान लो मैं 98 से 32 सब्ट्रैक्ट करूं, मुझे 66 मिलेगा, मतलब कैपिटल। मतलब कोई भी स्मॉल अल्फाबेट का कैपिटल अल्फाबेट के साथ का डिफरेंस 32, कोई भी स्मॉल अल्फाबेट का कैपिटल अल्फाबेट के साथ का डिफरेंस 32। ओके ना? तो मुझे क्या करना है सर, पूरी स्ट्रिंग चेक करें, जहां जहां मतलब जो भी जितने भी कैरेक्टर्स है हर एक में से 32 सब्ट्रैक्ट करें, you will get capital characters, you will get capital characters. So let me do this guys, let me just do this. ऐसे एक स्ट्रिंग यूजर से ही फेच करेंगे, हम लोग नहीं रखने वाला हमारे पास, क्योंकि हम लोग भूल जाएंगे अगर हर एक टाइम इनिशियलाइज करेंगे ना, तो एक बार यूजर से ले लेते हैं। और सर प्लीज एंटर स्ट्रिंग, तो पहले स्ट्रिंग ले लेते हैं। स्ट्रिंग आ गई, अब एक एक कैरेक्टर के पास जाना है, तो 0 से लेके कहां तक लूप चलाऊं मैं, फास्ट फास्ट। स्मिथ सर आपका फेवरेट है ये, नल फाइन। जब तक नल नहीं आता तब तक लूप चलाएंगे। करना क्या है सर, a of I is equals to a of I minus 32। क्यों? दोनों का डिफरेंस 32 है इसलिए। तो अगर मैं प्रिंट करूं तो हो जाएगा। तो क्या देख लेते हैं ना होगा कि नहीं होगा। देखो अब जो भी वैल्यू है उसमें 32 का डिफरेंस करके खुद में ही सेव कर रहे हैं, मतलब ओवरराइट कर रहे हैं। जैसे मान लो आई का वैल्यू 0, तो a of 0 के अंदर a of 0 का डेटा अपर केस में कन्वर्ट करके करना है। a of 0 के अंदर a of 0 का डेटा ही अपर केस में कन्वर्ट करके दे रहे हैं। ओ इट इज वर्किंग, इट इज वर्किंग। इज इट क्लियर गाइस? कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। फाइन, मुझे प्रॉब्लम है। क्या आउटपुट आना चाहिए? सब कैपिटल में आना चाहिए। हेलो। वही 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 व्हाट इज दिस? सिर्फ ई और ओ कैपिटल में आया, क्यों? बिकॉज गाइस जो कैपिटल एच था, लेट अस जस्ट वंस अगेन रन दिस प्रोग्राम, मैं वापस रन करता हूँ। तो मुझे ये बताया, देखो कैपिटल ए का आपकी कोड क्या है, इट इज 65। तो 65 में से आपने 32 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वो तो ऑलरेडी कैपिटल था ना, तो जो ऑलरेडी कैपिटल है उसको थोड़ी टेस्ट करना। हम लोग को तो किसके साथ काम करना है, ये इक्वेशन मुझे यूज करना है, बट कब? जब मेरा डेटा छोटू हो, मतलब 97 से
कहाँ तक था? 122 के बीच में हो सर, मतलब छोटू है। ओके, मतलब छोटू है, तो ये काम करो ना, बाकी मत करो। इज इट डन? 97 किसका आस्की कोड है? ए का स्मॉल ए का। स्मॉल और स्मॉल जेड का आस्की कोड क्या था? 122। इन दोनों की रेंज में अगर अपना डेटा, प्लीज डू द टास्क। अब ये पहले छोटू को कन्वर्ट करते हैं। इट्स वर्क फाइन, सही से वर्क कर रहा है। ठीक है, मैं मिक्स डेटा दे रहा हूँ और इट वर्क्स फाइन, स्टिल इट वर्क्स फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इज इट डन गाइस? यस इसको सर। एक और तरीके से लिख सकते हैं। ओके, मैं यहाँ कमेंट नहीं कर रहा। ओके, अगर आपको आस्की कोड याद नहीं है, लेते कमेंट, आस्की कोड याद नहीं है, ऐसा लिख दो सर, स्मॉल एस से स्मॉल जेड। देखो जो स्मॉल ए मैंने लिखा, इट इज एक्चुअली कैरेक्टर डेटा है ना, वो कैरेक्टर डेटा है, सिंगल कोटेशन इसीलिए लिखा। नाउ लेट मी चेक व्हाट कम्स, इट वर्क्स फाइन। once again let me just run this program, let me just check what comes, it works fine. Is it clear to everyone? यस सर। दोनों में से कोई भी तरीका रख सकते हो। मुझे कैपिटल टू स्मॉल चाहिए। ये प्रोग्राम क्या था? राइट ए प्रोग्राम। आर्यन सर, यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ तो सर मुझे थोड़ा जल्दी से बता दीजिए ना, मुझे लोअर केस में कन्वर्ट करना। क्या सर? मेरे पास स्ट्रिंग है, मुझे उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना। सबको छुटकू करना है। क्या आएगा गाइस? यस एनीवन? सर +32 कर देंगे। +32 कब करेंगे? यहाँ पे AI के आगे चेंज कर दो। कहाँ पे सर? एक मिनट। +32 करेंगे बट कैपिटल होगा तो, मतलब यहाँ पे क्या होगा? 65 से 90 की रेंज में है, अदरवाइज यहाँ कैपिटल और लिखा जेड है। कैपिटल। हाँ, यहाँ पे भी कैपिटल है, तो मैं +32 कर दूँ। आई एम हैप्पी टू जस्ट कन्वर्ट दैट। ये सर ये क्या? ये तो वेलकम का वेलकम। छोटू में तो कन्वर्ट कर रहे थे, छोटू में तो कन्वर्ट कर रहे थे, तो छोटू दिया मैंने, दैट्स फाइन। अब कैपिटल दे देते हैं, मोटू से छोटू। मोटू टू छोटू। ठीक है, फाइन। मिक्स दे देते हैं, इट्स वर्किंग फाइन, दैट्स गुड। तो सर उसमें दोनों साथ में नहीं हो सकता है क्या? सर मुझे ये बताए, मैं आपको स्ट्रिंग दूं, उसको आप अपर केस लोअर केस दोनों में कैसे कन्वर्ट करते? या तो अपर केस होता है या लोअर केस होता है, दोनों ऑपोजिट है ना एक दूसरे से। गॉटिंग गाइस? नेक्स्ट प्ले, नेक्स्ट प्रोग्राम ले। Now some Yes, guys sir. just say me, okay sir, write a program to convert the string, write a program to convert string into sentence case. what is sentence case? Sentence case मतलब आपको यूजर से बहुत बड़ा स्ट्रिंग लेना है, आपको यूजर से बहुत बड़ा स्ट्रिंग लेना है। Now what you have to do, उस स्ट्रिंग, बहुत बड़ा मतलब एक सेंटेंस लेना है, उसका सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होना चाहिए, उसका सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होना चाहिए, बाकी सब स्मॉल होना चाहिए। इंग्लिश में आप स्टेटमेंट लिखते हो तो कैसे लिखते हो? पहला अक्षर कैपिटल, बाकी सब छोटू, है ना? पहला अक्षर कैपिटल, बाकी सब छोटू। तो क्या करोगे? पहले तो स्ट्रिंग ले लोगे। गाइस म्यूट रखिए, अगर आपको डिस्टर्बेंस है तो म्यूट रखिए। तो सबसे पहले तो हम लोग स्ट्रिंग ले लेते हैं। Now after that what is my requirement? पहले तो स्ट्रिंग ले लेते हैं। तो यहाँ ऐसी बात हुई थी कि स्ट्रिंग में स्पेस भी होगा, तो स्पेस के साथ स्ट्रिंग रीड करने के लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
स्पेस के साथ स्ट्रिंग लेना हो तो क्या मैसेज, मतलब कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? कैन यू फॉर गेट इट? बट प्लीज गेट इट अगर आपको स्पेस के साथ चाहिए तो, अगर आपको स्पेस के साथ चाहिए तो गेट इट। अब मुझे ऐसा बोला कि सर पूरी स्ट्रिंग जो भी मैंने स्टेटमेंट डाला, लेट अस सेव दिस वन, और मैं इसमें लिख देता हूँ सेंटेंस डॉट सी। मैंने जो भी स्ट्रिंग डाला, जैसे कि मैंने लिखा वेलकम टू सूरत, ओके वेलकम टू सूरत, ओके यहाँ मैं प्रिंट भी कर देता हूँ, मैं भूल गया था प्रिंट करना। फाइन, लेट मी प्रिंट दिस आल्सो। ऐसा मैंने कुछ लिखा, सो आउटपुट एज इट इज नहीं आना चाहिए। पहली चीज, सिर्फ पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। रिमेनिंग कैरेक्टर्स मस्ट बी इन स्मॉल केस, रिमेनिंग कैरेक्टर्स मस्ट बी इन स्मॉल केस, बाकी सबके सब कैरेक्टर स्मॉल केस में होने चाहिए। ओके मुझे ऐसा कुछ चाहिए। सो मुझे सब कुछ स्मॉल में कन्वर्ट करना आता है, तो इसमें मैं ऐसा कुछ कर दूं, 0 से नल कैरेक्टर तक लूप चला देते हैं एंड सबको स्मॉल केस में कन्वर्ट कर देते, बट कैपिटल हुआ तो, ओके ना, कैपिटल हुआ तो। सो 90 कैपिटल मतलब 65 से 90 के बीच में हुआ तो कैपिटल है, तो मैं स्मॉल कर देता हूँ। ठीक, गाइस एनी प्रॉब्लम? तो ये तो हो गया लोअर केस, तो ये तो हो गया लोअर केस, इट्स नॉट फाइन। बट मुझे पहले अक्षर को कैपिटल करना है, सिर्फ एक ही अक्षर को कैपिटल करना है। सो व्हाट आई विल डू, बट वो स्मॉल हो तो कैपिटल करना है ना, तो लूप से बाहर जाके मैं लिख दूंगा सर अगर, क्योंकि एक ही बंदे के लिए काम करना था ना, एक ही बंदे के लिए काम करना, तो अगर 0 ए ऑफ 0 मतलब फर्स्ट कैरेक्टर छोटू है, क्या करेंगे विक्रम? छोटू है तो मोटू कर देता है, मतलब -32। बट गाइस पहले कैरेक्टर के लिए जो स्पेशल आपने उसको फैसिलिटी दी है ना, अब अपना लूप कहां से चालू होगा? इट मस्ट स्टार्ट विद 1। क्यों? पहले कैरेक्टर को कैपिटल करना था, रिमेनिंग कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग मतलब स्मॉल करना था। सो मैं एक बार मैसेज लिख देता हूँ वेलकम टू सूरत, और कुछ नहीं हुआ, लिखना पड़ेगा, क्यों कुछ नहीं हुआ? -32 मतलब कैपिटल हो जाना चाहिए। ओके क्यों नहीं हुआ? जब हमने आई लिखा था, सॉरी मैं 0 लगेगा। फाइन, जस्ट टेक W, इट्स राइट नाउ इन कैपिटल लेटर। इसी तरीके से कुछ भी इनपुट कर देते हैं, मतलब पहले से W को कैपिटल रखते हैं, तो वो कैपिटल ही रहेगा जब मैंने कहा स्मॉल। इज इट क्लियर? सर ऐसे 3 सेंटेंस में लिखते हैं तो वेलकम का W और टू का T और करते सूरत का करते 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 ये क्लियर? यस सर। आर्यन सर, विक्रम, यश, इज इट डन गाइस? हाँ सर। नेक्स्ट वन इज गाइस, इसके जस्ट पर मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम है। जैसे अभी विक्रम सर ने बताया कि सर मुझे कुछ और चीजें करनी है, ये तो मजा नहीं आया, आई वांट टू डू समथिंग एल्स। ओके मतलब लाइक गाइस जो विक्रम सर ने अभी क्वेश्चन पूछा, दैट इज एक्चुअली नोन एज टाइटल केस, दैट इज एक्चुअली नोन एज टाइटल केस। जैसे आपकी शॉप का टाइटल आप देखिए, आपकी शॉप का टाइटल या आप अपने कॉलेज का टाइटल, उसको देखेंगे ना तो हर एक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल होता है, हर एक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल होता है। तो मुझे ऐसा कुछ करना है, मुझे ऐसा ही कुछ डेवलप करना है कि हर एक वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल, हर एक वर्ड। जैसे कि मैंने इनपुट किया वेलकम टू सूरत, तो W कैपिटल होना चाहिए, वेलकम टू सूरत मतलब अगर मेरा ये इनपुट था तो W कैपिटल होना चाहिए, T कैपिटल होना चाहिए एंड S कैपिटल होना चाहिए। सो पहले कैरेक्टर तक तो हो ही गया था हमारा, पहले कैरेक्टर तक तो हो ही गया था कि पहले कैरेक्टर को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगी अगर A ऑफ 0 ग्रेटर देन क्या स्मॉल है। ऐसे भी लिख सकते हैं ना, भूलना नहीं है, इसलिए ये भी लिख देते हैं। ओके और स्मॉल कैसे तो -32 मतलब कैपिटल हो गया। अब लूप कहां से चालू करेंगे? 1 से जब तक नल नहीं आता, शाबाश, जब तक नल नहीं आता। अब अंदर क्या करना है? और अंदर का तो अभी सोचना पड़ेगा, अंदर सबको स्मॉल करना है क्या? नहीं नहीं नहीं, सेकंड वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, थर्ड वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, फोर्थ वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। पता कैसे चला कि वर्ड आया? फिर इसके बाद का सर?
स्पेस के बाद की चीज, तो मुझे चेक करना पड़ेगा। अगर a ऑफ i बराबर स्पेस है, a ऑफ i इक्वल टू स्पेस है, तो पहले तो i प्लस प्लस करो, मतलब नेक्स्ट पोजीशन पे चले जाओ, नेक्स्ट पोजीशन पे चले जाओ। और अब देखो भाई, तो छोटू है क्या? अगर वो छोटू है क्या तो कैपिटल करेंगे। छोटू मतलब क्या? पहले तो देखो स्पेस के बाद के कैरेक्टर पे पहुंचे। अगर वो छोटू है, अगर वो छोटू है तो क्या? तो a ऑफ i is equals to a of I is equals to a of I minus 32। अदरवाइज कुछ नहीं, अदरवाइज एज इट इज रहने दो। अगर वो कैपिटल है तो एज इट इज रहने दो, मतलब पहले वेलकम पे पूरा हो गया, स्पेस आया तो स्पेस के नेक्स्ट कैरेक्टर पे गए, स्पेस के नेक्स्ट कैरेक्टर पे जाएंगे, चेक करेंगे। अगर वो छोटू है तो बड़ू कर दो, बड़ू हो तो एज इट इज। और अगर स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं है, तो रिमेनिंग कैरेक्टर्स के लिए क्या करेंगे? चेक करेंगे भाई, रिमेनिंग कैरेक्टर्स को पहले चेक करेंगे वो है क्या। तो अगर वो कैपिटल है तो छुटकू कर देंगे। तो छुटकू कैसे करते हैं? रन करें एक बार। अब थोड़ा हैवी हो गया नहीं, तो फिर सब कुछ मैं पहले स्मॉल केस में इनपुट कर देता हूँ। एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है गाइस? WTS, कैपिटल कैपिटल कैपिटल, WTS कैपिटल कैपिटल कैपिटल। नाउ एक और रन करते हैं। तो इस बार बड़ा नाम लिखो थोड़ा। सब कुछ कैपिटल लिख देते हैं, पहले इस स्क्रीन के साथ देख लेते हैं। हाँ, इट वर्क्स फाइन। ठीक है, अभी भी वो सही से काम कर रहा है। मैं अब मिक्स डेटा दे रहा हूँ। नाउ इट स्टिल वर्क्स फाइन। ठीक है, अभी भी वो सही से वर्क कर रहा है, नो प्रॉब्लम। एंड सर के अपने विक्रम सर, बड़ा नाम तो मुझे यहाँ पे पहले स्ट्रिंग बड़ी करनी पड़ेगी, बट नाउ दैट्स फाइन, इट विल वर्क, डू नॉट वरी। ओके, हर एक स्ट्रिंग के साथ वर्क करेगा। इज इट क्लियर गाइस? तो हमने सबसे पहला क्या किया? पहले तो हमने फर्स्ट अल्फाबेट को चेक किया, भाई तो कैपिटल है स्मॉल है? अगर स्मॉल है तो कैपिटल हो जाए, कैपिटल है तो ठीक, मुझे एल्स लिखने की जरूरत नहीं। बाद में मैंने 1 से लेकर नल कैरेक्टर मतलब पूरी स्ट्रिंग को एग्जामिन किया, कहीं पे भी मुझे स्पेस मिलेगा तो उसके नेक्स्ट कैरेक्टर पे पहुंच जाऊंगा। और अगर स्पेस नहीं मिला तो हर एक कैरेक्टर को एग्जामिन करेंगे। भाई कोई कैपिटल है, स्पेस को भूल जाओ, कोई कैपिटल है तो स्मॉल हो जाओ, चलो जल्दी से। अगर स्पेस मिला, इफ यू जस्ट फाइंड द स्पेस, उसके नेक्स्ट कैरेक्टर पे मूव करिए, उसके नेक्स्ट कैरेक्टर पे मूव करिए। नेक्स्ट कैरेक्टर पे जाने के बाद क्या करेंगे? चेक करेंगे, भाई तो स्मॉल है तो कैपिटल हो जाए, बिकॉज वी वांट टाइटल, वी वांट अ टाइटल केस। तो अगर तो स्मॉल है देन प्लीज कन्वर्ट दैट वन इनटू कैपिटल लेटर। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो हमने 4 केसेस पढ़े, अपर केस, लोअर केस, टाइटल केस, सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज टॉगल केस। टॉगल केस का मतलब स्मॉल कैपिटल, कैपिटल जो भी स्मॉल है उसको कैपिटल कर दो, कैपिटल है उसको स्मॉल कर दो। मतलब अगर आप अपने स्विच बोर्ड में देखें तो वहां पे टॉगल स्विच होती है। टॉगल मतलब अगर आपका फैन ऑफ है, और आप अगर टॉगल स्विच मतलब अगर आप फैन की स्विच ऑन करते हो तो क्या होगा? वो स्विच प्रेस करने से क्या होगा? फैन विल बी स्टार्टेड, फैन विल बी ऑन। अगर उसी स्विच को रिसेंट मतलब 1 सेकंड प्रेस करो, उसी स्विच को 1 सेकंड प्रेस करो, आपका फैन ऑफ हो जाएगा। ओके, दैट मींस व्हाट? इट्स अ टॉगल स्विच। टॉगल मतलब क्या? जिससे ऑन हो रहा है उससे ऑफ होगा। जैसे अपने मोबाइल में अपना पावर स्विच होता है, तो पावर स्विच आप क्लिक करोगे, मोबाइल विल बी इन स्लीप मोड, और स्लीप मोड में होगा, पावर स्विच क्लिक करोगे देन इट विल बी इन एक्टिव मोड। ओके, सो दैट इज एक्चुअली नोन एज टॉगल। टॉगल इन द सेंस व्हाट? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, दूसरे से ओरिजिनल मतलब लोअर टू अपर, अपर टू लोअर। सो मैं क्या करूंगा गाइस? मैंने स्ट्रिंग ले लिया, मुझे पता है मुझे 0 से लेकर नल कैरेक्टर तक चलना है, लॉजिक बताए। यस, गाइस लॉजिक चाहिए। जल्दी फास्ट। क्या लिखे यहाँ पे? क्या लिखना है? सिंपल सा तो कंसेप्ट। अगर
ए ऑफ आई की वैल्यू छोटू है, तो क्या करना है? बी ऑफ आई की वैल्यू सॉरी ए ऑफ आई की वैल्यू छोटी है तो ए ऑफ आई की वैल्यू बड़ो कर देंगे। बड़ो कैसे करोगे? बट अगर ए ऑफ आई की वैल्यू बड़ो है तो उसको छोटा कर देंगे। प्लस +32, दैट्स प्रीटी सिंपल, है ना? दैट्स क्वाइट सिंपल गाइस, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, कुछ है नहीं प्रोग्राम में। चेक कर लेते हैं, एक बार रन कर लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे वेलकम, सब छोटू से सब कैपिटल। ठीक है, हम लोग एक बड़ा सा स्ट्रिंग देते हैं, तो बड़ा कम टू खूरत। Oh, now just say welcome to so that छोटू capital छोटू, so that is toggle case, that is toggle case. So that's that. So we have 5 different cases: uppercase, lowercase, sentence case, title case, toggle case. Yes, we can. विक्रम सर कुछ प्रॉब्लम? नो सर, इट्स वर्किंग। गाइस किसी और को कुछ प्रॉब्लम? नो सर। फाइन, सो आई होप आप एंजॉय कर रहे हो स्ट्रिंग को। थोड़ा सा खेलते हैं स्ट्रिंग के साथ, बहुत हो गया, बहुत मजे ले लिए स्ट्रिंग ने। अब थोड़ी सी फंक्शनैलिटीज हमको पता चल चुकी है, सो लेट मी जस्ट वर्क विद द स्ट्रिंग।